What is a set? It is a well-defined collection of objects. Well-defined collection. सेट को बेसिकली हम कलेक्शन कहते हैं, लेकिन कलेक्शन वेल डिफाइंड होनी चाहिए. वेल डिफाइंड का मतलब, इफ आई से मेक अ सेट ऑफ वॉवल्स, हमको पता है वॉवल्स कौन कौन से होते हैं. एक होता है सर ए, ई, आई, ओ, यू. सो these are the vowels written inside the brackets with commas. So these brackets, these represent a set. And these elements inside the set are called elements of the set. If I am told to make a set of all natural numbers, now how will I make this infinite set? I will start writing natural numbers like 1, 2, 3, 4 and I will leave it as dot dot dot. This dot 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 means this set is increasingly going towards infinity. Similarly, if I am told to write a set of all integers between -2.2 and 2.2. So as you can see on the number line, 2.2 is somewhere here and -2.2 is somewhere here. So what integers come between -2.2 and 2.2? Surely 0 comes, 1 comes, 2 comes, -1 and -2. तो इंटीजर्स कौन से नंबर्स होते हैं इनके साथ डेसिमल नहीं होता, पूरे नंबर्स. ऐसे नंबर्स का सेट बनाएंगे तो कैसे लिखेंगे? -2, -1, 0, 1, 2. जो भी एलिमेंट्स हम लिखते हैं उनको कॉमा से सेपरेट करते हैं और करली ब्रैकेट्स, ये जो करली ब्रैकेट्स होती है ये रिप्रेजेंट करती है सेट. आप स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगा सकते, आप राउंड ब्रैकेट नहीं लगा सकते. यू हैव टू यूज करली ब्रैकेट्स टू रिप्रेजेंट अ सेट. बट अगर आपको कोई कहे मेक अ सेट ऑफ मोस्ट टैलेंटेड क्रिकेट प्लेयर्स ऑफ इंडिया, तो क्या आप सेट बना पाओगे? अब एक्चुअली द टर्म मोस्ट टैलेंटेड इज नॉट वेल डिफाइंड, और सेट क्या होता है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है. व्हाई इट इज नॉट वेल डिफाइंड? बिकॉज इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. अब मेरे लिए विराट कोहली अच्छा प्लेयर हो सकता है, आपके लिए नहीं हो सकता, ठीक है ना? तो ये प्रॉपरली डिफाइंड नहीं है, वेल डिफाइंड नहीं है. सो फॉर्मिंग अ सेट इज नॉट पॉसिबल. So to make a set, your terms must be well defined, right? चलिए, अगर मैं कहूं make a set
of all letters of the word Allahabad. Then you will make a set like this: A, L, H, B, D. Now what about the repetitions? Actually the set should have been A, L, L, A, H, A, B, A, D, right? But in a set, repetitions are removed. So this set simplifies to this small set. So basically A was coming how many times? 4 times. You just have to write A single time. That will represent all the A's. And similarly L is coming 2 times. You just have to write it 1 time. Then H, then B, and then T. So in a set, if repetition is there, if elements repeat, remove the repetition. तो सेट जब भी सिंप्लीफाई होके लिखा जाएगा फाइनल, तो रेपिटेशन रिमूव करके लिखा जाएगा. चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं. मेक सेट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड equation. Now as you can see here, there is no repetition. So all of the letters will come inside the set. So this is how we will make this set. Now how to write name of the set? So name of the set is written by English uppercase letter. Meaning, if you want to give this set a name, you can write it as set M, or you can write this set as set N. So you can give names to the letter. To the sets. If I say make set of letters of the word Mississippi. So as you can see that there are repetitions. So simplified set will be written as, you can name it as Z. It will be M, I, S and P. There is no need to write I 4 times or S 4 times or P 2 times. So simplified set will be M, I, S, P. So this is one of the rules of writing a set. I am repeating the rules. First of all, elements are written in curly brackets and there is no repetitions. There is one more rule. If I make a set of letters of word loyal. So I will write LOYAL.
Y, A. I can give this set any name, let it be set M, and here make a set of letters of the word alloy. अब जो मैं सेट बनाऊंगा मेरे पास क्या आएगा, A L O Y. As you can see, set M has 4 elements, L, O, Y and A. Similarly, set N also has these 4 elements, but elements are not in order. इसमें भी वही 4 एलिमेंट्स है और इस सेट में भी वही 4 एलिमेंट्स हैं, बट चारों एलिमेंट्स ऑर्डर में नहीं है. ठीक है, पहले यहाँ पे L आ रहा है तो यहाँ पे A आ रहा है. तो इन अ सेट ऑर्डर डज नॉट मैटर. एक सेट में कभी भी ऑर्डर मैटर नहीं करता, यानी M and N are same sets. So मान लो कल को मैं आपको एक और एग्जांपल दे दूं कि जी सेट 1 2 3 4 दिया हुआ है एक सेट, मैंने आपको सेट इट बी सेट A. एक सेट दिया हुआ है 3 1 2 4, एक सेट दिया हुआ है C 5 1 3 4. So which sets are same? Obviously set A and set B are same because they have the same elements, right? Now we have understood what is a set. It is a collection of well-defined objects. How it is represented by curly brackets. How it is being named with the help of uppercase letter. What are the rules of writing the set? No repetitions and order does not matter. Order does not matter. So whatever set I write, for example I am writing this set A E I O U. Now what are these? These are called elements of the set. These are written in a set with the help of commas. And they belong to a set. They belong to a set. They belong to a set means if I ask whether A belongs to M or not, answer is yes. If I ask B belongs to M or not, answer is no. So A belongs to M, that means A is the element of M, but B is not the element of M, so B does not belong to. This information is written mathematically. If we have a set M as A E I O U, then mathematically A belongs to M. So this is a symbol for belongs to. It looks like elongated E, but it is basically belongs to. So अगर मैंने E लिखा है belongs to, I belongs to M, O
belongs to M, U belongs to M. जो एलिमेंट्स हैं वो सेट के अंदर आ रहे हैं तो वो बिलोंग्स टू का साइन लगेगा। अगर मैं पूछूं क्या T बिलोंग करता है, डज नॉट बिलोंग्स टू, क्या P बिलोंग करता है हमको, नहीं, तो जो बिलोंग नहीं करता उसको बिलोंग्स टू के साइन को काटना है। क्या Z बिलोंग करता है, नो, इसलिए ऐसे लिखा जाएगा Z डज नॉट बिलोंग्स टू M। अनदर एग्जांपल देख सकते हैं। हाँ जी सर, जैसे यहाँ पर A छोटा था, अगर A बड़ा हुआ तो वो भी नहीं बिलोंग करेगा। जी बिल्कुल, जैसे मैंने पूछ लिया क्या 1 बिलोंग करता है N को, यस। क्या -1 बिलोंग करता है N को, नो, सो -1 डज नॉट बिलोंग्स टू N, राइट। जैसे कि एक और सेट दे देता हूं मैं आपको A, इसमें मैंने दिया आपको DGH। अब मैं आपसे पूछता हूं क्या D बिलोंग्स टू A, आंसर इज नो, बिकॉज यू कैन नॉट स्पॉट लोअर केस d in this set. So these are the final rules of writing a set with a meaning how the elements belong to or does not belong to a set. Next, ways of writing a set. There are two ways of writing a set or forms. One is roster form and other is the set builder form. In roster form, elements are listed directly, and in set builder form, definition of elements is given in the form of statement. For example, there is a set A which is a set of vowels. So here I have given statement. So it is set builder form. If I write A, E, I, O, U, here elements are written directly. So this form is called roster form. So this is set builder, this is roster. So in exam you can have both the forms. For example, if I say make roster form of following set, and you have been given a set A which has element n such that n is a prime factor of 12. Now you know that prime factorization of 12 can be done easily. If you divide by 2 you have 6, again you divide by 2 you have 3. So what prime factors divide, what are the prime factors of 12? These are 2 and 3. So this is called a set builder form. In order to write in roster form, you just have to find the prime factors of 12.
So 12 has a prime factorization 2 into 2 into 3. So which are the prime factors you are getting? 2 and 3. So roster form will be 2, 3. A student can also write 2, 2, 3, but as you know that in a set you have to delete the repetition. So this will simplify to this set only. So this is the roster form for the above set builder form. So I am going to send you the link again, right? Please stay tuned. Another example. तो आपको एक सेट दिया गया है जिसकी सेट बिल्डर नोटेशन आपको दी गई. It has an element x such that x is equals to n upon n plus 1, where n is a natural number less than 5. Now n is a natural number less than 5. कौन कौन से नेचुरल नंबर लेस देन 5 होते हैं? 1 2 3 4. 1 2 3 4. तो हमने n की वैल्यूज ये डालनी. पहले n को 1 डाला तो x की वैल्यू कितनी आएगी? n को 1 डाला तो x आएगा 1 over 1 plus 1 यानी 1 upon 2. फिर n को 2 डाला तो x आएगा 2 over 2 plus 1 यानी 2 upon 3. देन n को डाला हमने 3 तो x आएगा n upon n plus 1 यानी 3 over 4. फिर हमने n को डाला 4 तो x आएगा 4 upon 4 plus 1 यानी 4 by 5. सो आपका जो सेट A बनेगा रोस्टर फॉर्म में वो बनेगा. A में कौन है? एलिमेंट्स x हैं और x क्या क्या वैल्यूज ले रहा है? एक ले रहा है 1 by 2, एक 2 by 3, एक 3 by 4 और एक 4 by 5. So this is how we make roster form of the set. चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं. आपको सेट बिल्डर फॉर्म दिया गया है, रोस्टर बनाना है. सेट बिल्डर फॉर्म में बोला उसने सेट B has an element y such that y is equal to n square, where n belongs to natural numbers and n is less than or equal to 9. बेटा 9 या 9 से छोटे नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? ये हो गए सर 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9. और y ये सब किसकी वैल्यूज हैं? ये सब n की वैल्यूज हैं. हमको तो y चाहिए. y है n स्क्वायर. n स्क्वायर का मतलब इन सभी का स्क्वायर निकाल दो. 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81. तो ये सभी y की वैल्यूज आ गई. बट y की वैल्यूज हमने किस में लिखनी है? रोस्टर फॉर्म में. सो रोस्टर फॉर्म विल बी 1 4 9 16 25 36 49 64 80. क्वेश्चन उल्टा भी आ सकता है. मान लो आपको रोस्टर फॉर्म दी गई हो और आपसे मांगी गई हो सेट बिल्डर फॉर्म. सो राइट सेट बिल्डर फॉर्म. अब आपको पैटर्न्स भी देखने पड़ सकते हैं फॉर द फॉलोइंग सेट. अब आपको एक सेट दे दिया हमने जिसमें हमारे पास आ रहा है -3, -2,
-1 0 1 2 3 4 5। अब आपने इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये सारे क्या हैं, इंटीजर्स हैं, ठीक है। और वो कहाँ से शुरू हो रहे हैं, -3 से। जा कहाँ की तरफ को रहे हैं, 5 की तरफ। तो हम बोलेंगे सेट बिल्डर फॉर्म बनेगी सर, ए में एलिमेंट है x सच दैट। अब सच दैट इंग्लिश में नहीं लिखना, तो मैथमेटिकल सिंबल होता है ये रेशो जैसा सिंबल, x सच दैट x इज एन इंटीजर एंड x -3 से शुरू होके कहां तक जा रहा है, 5। तो -3 से बड़ा और 5 से छोटा। इक्वल का निशान लगा हुआ है, इक्वल का निशान लगा हुआ है, इसका मतलब -3 के इक्वल भी है और उससे बड़ा भी है। सिमिलरली यहाँ पे भी इक्वल का निशान लगा है, इसका मतलब 5 के इक्वल भी है और 5 से छोटा भी है। तो ये सारे एलिमेंट्स होंगे जो इंटीजर्स हैं और -3 और 5 के बीच में आ रही है, with -3 and 5 including. So this is all about a set. So एक सेट की डेफिनेशन में आपको क्या पता होना चाहिए कि सेट बनता कैसे है, उसको लिखते कैसे हैं, उसका नाम कैसे देते हैं, उसको कौन सी फॉर्म से रिप्रेजेंट कराया जा सकता है, उसके रूल्स क्या होते हैं, राइट। इन सभी रूल्स के बाद हम अगर देखें हमारे पास आती है फर्स्ट एक्सरसाइज। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर सेट, कौन कौन सा सेट है, आपने अपनी आंसर्स को जस्टिफाई भी करना। द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर J, क्या इसका सेट बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। जनवरी, जुलाई, और कोई हो सकता है जी, जून, जून, यस। सो ये जो हमने लिखी ये रोस्टर फॉर्म, और ये जो दी गई है इसे हम सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं, राइट। जो डायरेक्टली एलिमेंट्स लिखे जाएं उनको रोस्टर फॉर्म, और जिसकी डेफिनेशन दी जाए उसको सेट बिल्डर फॉर्म। चलिए, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, क्या सेट बनेगा बेटा, नहीं, नॉट पॉसिबल, नहीं बनेगा। रीजन, मोस्ट टैलेंटेड इज नॉट वेल डिफाइंड, वेरी करता है, ये वेल डिफाइंड नहीं है, इसलिए इसका सेट नहीं बन सकता। 11 बेस्ट क्रिकेट प्लेयर्स, नहीं बनेगा, नहीं बन सकता। ऑल बॉयज इन योर क्लास, से बन जाएगा, बन जाए। कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, बन जाएगा, बन जाएगा, बन जाएगा। नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, ये भी बन जाएगा, कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, बन जाएगा, यस। ऐसे 2 4 6 8 10 12 अब डॉट 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 में छोड़ना पड़ेगा, राइट। सो 2 से भी पहले होते हैं, इसलिए थोड़ा सा इनकरेक्ट लिखा, इसको और एक्सटेंड करके लिखा, 0 भी होतेगा, -2 भी आ जाएगा, ये सारे इवन इंटीजर्स। तो ये नेगेटिव की तरफ को भी एक्सटेंड कर सकता है और पॉजिटिव की तरफ को भी एक्सटेंड कर सकता है। तो लवप्रीत जी, ऐसे जब लिखा जा रहा है तो इसको कौन सी फॉर्म बोलते हैं हम, रोस्टर फॉर्म। सर रोस्टर फॉर्म। और जब सीधा एलिमेंट्स ना देकर उसने सिर्फ बोला कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीजर्स, ये कौन सी फॉर्म हुई, सेट बिल्डर। हाँ, सेट बिल्डर। और एग्जांपल्स देखोगे तो और क्लियर हो जाएगा, राइट। चल आगे चलते हैं। सेट थ्योरी बहुत ही आसान चैप्टर है। Collection of questions in this chapter. Can you make a set out of it?
यस, कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एलिमेंट्स। अब कोई बच्चा तो छिपकली से भी डर जाती है लड़कियां तो, या बॉयज को मकड़ियों से डर लग जाता है, राइट। तो डेंजरस की तो कोई डेफिनेशन नहीं ना हो सकती, तो इसीलिए दिस सेट कैन नॉट बी फॉर्म, राइट। आगे चलते हैं। उसने बोला लेट एक ऐसा सेट दिया गया है, अप्रोप्रिएट द सिंबल बिलोंग्स टू, दिस इज द सिंबल फॉर बिलोंग्स टू, if it is being crossed by a line it means does not belongs to। तो आपको ये देखकर बताना है कि जो एलिमेंट्स हैं वो बिलोंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे। जैसे 5 बिलोंग कर रहा है सेट ए को, यस, तो बिलोंग्स टू का निशान। क्या 8 सेट ए में है, नो, तो डज नॉट बिलोंग्स टू का। I think rest of the parts आप खुद कर सकते हैं, so I am leaving it as a homework for you. Then moving to question number 3, you have to write the sets in roster form। देखिए क्वेश्चन में रोस्टर फॉर्म मांगी है, तो आपको दी क्या हुई है, आपको सेट बिल्डर फॉर्म दी हुई। सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब आपको स्टडी करना पड़ेगा कि सेट के अंदर है क्या। एक्स एक एलिमेंट है, एक्स कुछ भी हो सकता है, और वो कुछ भी में क्या बोला उसने कि ये x एक इंटीजर है, और वो इंटीजर कहां से कहां तक है, -3 से लेकर 7 तक। तो आप -3 से 7 तक के इंटीजर ढूंढेंगे। -3 तो 7 तक नहीं है, हाँ 7 नहीं है क्योंकि इक्वल का निशान नहीं है। तो बेटा ये मैं एट मैक्स 6 तक चला जाए। So your answer will be -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Now this elements written in this form are in the form roster form. So बाकी मैं नहीं बता रहा हूँ, these are for your own practice. So आप करके मुझसे डाउट पूछिए। Then moving to question number 4, you have to write them in the सेट बिल्डर फॉर्म। तो इसका भी मैं पहला डिस्कस कर लेता हूं। हमारे पास है 3, 6, 9, 12। नाउ व्हाट आर देम? देखिए ये 3 का टेबल दिखाई दे रहा है ना, 3 1 का 3, 3 2 का 6, 3 3 का 9, 3 4 का 12। सो आई कैन राइट एनीथिंग जो इस डेफिनेशन पे, जो यही एलिमेंट्स दे, मुझे वो डेफिनेशन देनी है, मैं कुछ भी लिख सकता हूं। मैं कहता हूं x में, a में एलिमेंट है x, और x किसके इक्वल है, 3n, वेयर n is a natural number less than 5। 5 से छोटे नेचुरल नंबर क्या हुए, 1 2 3 और 4, और मैंने उनको 3 से मल्टीप्लाई कराना था इसलिए 3n लिख दी। तो x ऑटोमेटिकली क्या वैल्यूज ले लेगा, 3, 6, 9 और 12। बताइए लवप्रीत जी, अब क्लियर है? सर सेट बिल्डर फॉर्म में जो सेट दिखते हैं उसको नाम देना जरूरी है? हाँ जी, नेम देना जरूरी है। अपर केस से आप कोई भी नाम दे सकते हो, बड़ा ए बड़ा बी। सर रोस्टर फॉर्म में जरूरत नहीं होती है? रोस्टर फॉर्म में भी जरूरत होती है, बेसिकली देने वाले ने नाम नहीं दिया, लेकिन जब आप नाम लिखेंगे तो आप कोई भी नाम दे देंगे उसको, राइट। बट अभी तो ये सेट ए है, तो इसलिए इसका नाम भी सेट ए रहेगा। अब सेकंड में है, सेकंड में आया मेरे पास 2, 4, 8, 16, 32। अगर आप गौर से देखो तो ये सारी 2 की पावर्स हैं, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। तो कौन वेरी कर रहा है, 2 की पावर। तो अगर आपने इसका सेट बनाना है तो कैसे लिखेंगे, इसमें तो एक एलिमेंट है y क्या है, 2 की पावर n, वेयर n belongs to natural numbers and n is less than or equal to 5। अगर आपने नेचुरल नंबर नहीं लिखना पूरा इंग्लिश में, तो ऐसे बड़े n से डिनोट कर सकते हो, और 5 तक ही लेके जाने हैं, इसलिए इनइक्वालिटी को इंट्रोड्यूस कर सकते हो, राइट। बोले जी, क्लियर है सेकंड पार्ट? लवप्रीत जी एनी डाउट? नो सर। आगमजीत जी आपको?
सर है पर मैं बाद में पूछूंगा। ओके बेटा, चल क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जाते हैं। लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट। उसने बोला x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं सर? 1, 3, 5, 7, 9, 11। अब तो ये खत्म ही नहीं हो रहे, तो डॉट 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 करके छोड़ दे। सेकेंड पार्ट कहता है x इज एन इंटीजर बिटवीन -0.5 एंड 4.5। -0.5 और 4.5 के बीच में इंटीजर्स कौन कौन से आएंगे? 0, 1, 2, 3 और 4 तो आएंगे ही आएंगे। क्या -1 आएगा? नहीं सर, क्योंकि -1 तो 0.5 के इधर जाता है। तो इंटीजर्स कौन कौन से बैठे? 0, 1, 2, 3, 4। ये आ गया हमारा सी पार्ट में भी कर ही देता हूं। x² < 4। ऐसे कौन से नंबर हैं, ऐसे कौन से इंटीजर हैं जिनका स्क्वायर 4 से छोटा आएगा? बेटा इंटीजर्स इनफाइनाइट होते हैं, उनके स्क्वायर्स 4 से छोटा। देखिए 0 का स्क्वायर 4 से छोटा होता है, 1 का स्क्वायर 4 से छोटा होता है, 2 का स्क्वायर 4 या 4 से छोटा होता है। क्या 3 का होता है? नो। क्या 3 से आगे वाले नंबर्स का होता है? नो। तो 3 और 3 से आगे वाले सब कैंसिल हो गए। ऐसे ही -1 का स्क्वायर 1 होता है जो कि 4 से छोटा है। -2 का स्क्वायर बेटा 4 होता है जो कि 4 से छोटा है। क्या -3 का स्क्वायर 4 से छोटा होता है? -3 का स्क्वायर देता है 9 जो कि 4 से छोटा नहीं। तो बेटा -3 और इसके आगे वाले भी सारे कैंसिल हो गए। तो आपके पास बचे कौन से? आपके पास बचे -2, -1, 0, 1, 2। तो आपका आंसर बनेगा सर -2, -1, 0, 1, 2। सो दिस इज सेट सी। सो इससे आगे मैं नहीं बताऊंगा, आप पहले एज अ होमवर्क ट्राई कीजिएगा। राइट, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6। मैच ईच ऑफ द सेट। रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म दी हुई है, आपको मैचिंग करनी है। जैसे 1, 2, 3, 6। अब 1, 2, 3, 6 किस में हो सकता था? देखिए, अ प्राइम नंबर एंड अ डिवाइजर ऑफ 6। यस, बट 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। तो बेटा क्योंकि प्राइम नंबर मांगे हैं, 6 भी प्राइम नंबर नहीं हो सकता, तो इसीलिए ए तो नहीं हो सकता। ऑड नंबर लेस देन 10 ये भी नहीं हो सकता। नेचुरल नंबर एंड अ डिवाइजर ऑफ 6 ये हो सकता है। क्यों? 6 के डिवाइजर्स क्या हैं? 1 है, 2 है, 3 और 6 है। सो 1 किसके साथ मैच हो जाएगा? सी के साथ। इन द सेम वे आपने बाकी करना।